In today's episode of the Senior Saga, we bring to you the story of Mr. Parveen Taneja. At the ripe age of 67, he strives to serve the nation by serving the underserved children of the society, instilling dignity in them and making them self-respecting human beings. So let's dive right into it and meet this man on a mission. I work with Vikas Vishranti. I personally consider it to be a very noble organization. One area where India really needs great improvement is in the education of underprivileged children. They are not able to go to school because their parents are not able to afford them the means, right? And they don't have that necessary environment at home or in their surroundings whereby they can acquire any good education. We provide them books, uniforms, dresses, shoes, right, and all study materials, stationery, books, pencils, bags, right. These are essential items. When I met some of those students, living in clusters of jhugis, I found that they had a very negative attitude towards everything. They would go around begging for small things. When we started teaching them and we tried to inculcate a sense of dignity and we want them to become self-respecting individuals, this can come only through good education. And our organization has been doing a substantially good work in terms of making them better human beings. After all, how do we assess an individual? On the basis of the quality of his mind, his thought processes, his intelligence. Now, these things cannot be acquired overnight. They have to be inculcated. Discipline has to be inculcated. Higher-end values are to be inculcated in them, and it takes long time. Education is the solution to all these problems. A good quality education will go a long way to make them better human beings. And if they become better human beings, they will become better citizens. And better citizens of India will make India truly great. We were refugees from West Pakistan. In 1947, being Hindus, we were pushed out of Pakistan. And when my parents came to India, they were penniless. It was a very hard life for them. My father worked throughout his life, right? And he was busy setting up his business. And as a result, he did not have any time to provide us good education. So I studied in a school, which did not have any facilities. The teachers were, probably they taught, but the environment was not right. And we had no motivation to study. So throughout my schooling, I was more or less an underprivileged child because there was no one to guide me, and I really felt greatly hurt, right? And I felt that the life was not going in the right direction, but fortunately life has got its own twists. So I somehow fortunately I managed to get admission in BA English Honours in Rajdhani College, Delhi University. Now, it was a great turning point in my life. For the first time, I came under the influence of Shakespeare. Because Shakespeare, Robert Browning, Walt Whitman, E.M. Forster, Marlowe, all great minds, of English literature and world literature were prescribed in our course. And when I started studying those great authors, it brought about qualitative improvement in me. I felt that I was becoming a better human being every day, and my thinking deepened, my understanding of life increased, my sympathies for others were enlarged and they became deepened. So as I kept on studying, my outlook towards life kept on changing and I became a better and a better human being. This organization, I joined it about 2 years back, right? Then I was about 65 years old, right? And I felt that this is what I really was looking forward to for a long time. In fact, I am now in my late 60s.
and I have been teaching throughout my life. I was director of Institute of English Language and Computer Science for 27 years. After that, I was a visiting faculty at Shahada University for 6 years. For 2 years, I was a professor at ABS Engineering College. There, we were working very hard. We taught, we got payments, and more or less the life was moving on a very smooth plane. But always there was some kind of dissatisfaction. I always felt that life is meant for nobler purposes, and one must contribute something worthwhile to the society and to the people who really deserve to get it. There are two things, which I would like to emphasize, One thing is that keep on learning. At the age of 64, I went to appear in NPTEL's exam. All right. So I was perhaps the oldest student appearing in that exam, and there was an engineer about 30 years old. So he was surprised and shocked to meet me. He said that at the age of 30, he thought that was his last exam, right? And he looked at me, and I told him that I'm in my 60s and I feel that this is my second beginning, right? And and he said that, why do you study? All right. I told him that, well, I study because I feel that I'm going to live on this planet forever. That means if you study, you should study with such earnestness and seriousness, right? That you should believe that you are going to live on this planet, and whatever knowledge you are going to acquire, right, that is going to be of help to you and others forever, for all the time to come. But the greatest realization that came to me was that whatever knowledge you may accumulate, what is the use of that knowledge if you don't pass it on to others? So what is really important is that whatever hard work you have done, whatever knowledge you have acquired, even after doing my post-graduation, I acquired more than 10 diplomas and certificates. So I have kept myself busy throughout my life, acquiring certificates, knowledge, and in that pursuit of wisdom. But the final realization was this, that all this knowledge will go useless if you don't pass it on to the others or to the next generation. So my sincerest desire now is that whatever knowledge I have acquired, it must be passed on to those who do not have the resources to get it. More you study, better human being you become. But your commitment towards goodness, that is required, you see. Intelligence is to be developed for the greater good of humanity. One should not misdirect one's intelligence, right? All other things, just vanish, they disappear, they don't mean much in the long term. But the good that you are able to do to your students, and you expect that in turn they will do good to the world at large, I think that is my greatest accomplishment. I am proud of it, that I am doing something worthwhile for the underprivileged sections of Indian society, and I pray to God that God should give me the strength to continue doing whatever good work I am doing. I hope God will bless me, and I will continue teaching these underprivileged sections of society. Yeah, Captain Jagdev Singh Gulia, because I'm an ex-army officer. I was born in Delhi. I was in my school. I joined NCC, and I was a pretty active cadet in NCC. And while in NCC, I came across a lot of army officers, and I saw it was a glamour of the uniform. Wherever they went, everybody saluting. And I think probably it was when I was in class 8 or 9 that I decided that if I am ever going to work, I'm going to work as an army officer, otherwise I will not do a job. 1981, October was the date, month of October 1981. So that makes me about 20 years and some 3 months when I joined the army. And after completing my training with the Officers Training School, now it is called OTA, that is Officers Training Academy. But in my time, it was Officers Training School. I joined
one of the most prestigious battalion of Indian Army. That is Punjab Regiment, which happens to be the oldest regiment of Indian Army. And in that 23rd Battalion, so most of people must be aware of the movie, Sunny Deol's movie called Border. Now that Longewala post, which was defended, that was my battalion, and I felt really proud of joining there. Think of myself as a good debater, and I have my way with the words. And you see, at that time, before I took upon the LLB, I was conducting classes for the army, people who are retiring the last 1 month of their service. People are retiring young, especially the Jawans. They retire at the age of 35 to 40 years. So army prepares them with various courses or various information about the vocations which they can take up after retirement. So I used to conduct the courses for the people who are retiring. Around 2015, that was the time when, for whatever reasons, government curtailed those training programs, and I had decided that if I ever work, it's going to be as an army officer, otherwise I'll not work. And I'm the master of my own. And this is the best profession where you don't have the problem of, or the worry of retirement. You can work in such time you want to work. And you can help the society as well. Well, I do a lot of pro bono work, for the poor people. I don't charge them. I always help them in whatever way I can. And I think it was a right decision on my part. I feel happy today that I took this decision and took the LLB degree. And when you say that you see, there's nothing known as second half or first half or middle half or anything. Life is a flowing stream, it just keeps on going. Well, you do not know how long or how far it will go, but yes. And as long as you can do it, then why not take up challenges? People normally go, very young in the army. And the reason is because that age, you can be molded as per the requirements of the army. Well, I can say it is the best thing which has happened in my life. It has taught me so many things. It has taught me discipline. And of course, I'm fit today. It is all thanks to the army, because they, inculcated the physical fitness thoughts in my mind, and I keep working on that. You start, your own family becomes secondary, and that becomes your family. You're just part of a family. Everybody is just a family. The gentleman, Major Bharat Bhushan, he was from Kumaon Regiment, and he was 6 feet plus, and all shiny uniform and everything. And I was so impressed. I said, "This is the life, and that's how I'm going to do it." That's when I decided that was 8th class. I still remember the camp, NCC camp I had gone to was Nahan, near Dharamshala in Himachal Pradesh. That's where it all started. It's a human tendency. They resist change. They don't want to change because they feel that every change takes them out of their comfort zone. But again, it's a very subjective kind of a thing. It's very difficult to generalize thing or for everybody. But yes, one thing I would definitely like to say, that adopt the change. It might be uncomfortable, for a certain period of time, but once you get used to it, then you start thinking, okay, what was I doing till now? This is much better. So till such time you go and try that thing, how will you know that it is good or bad? You will never know it. That you have achieved everything and now you don't want anything more. That day you are dead. People have been telling me a lot of things, so I said, let's give it a try. And had I not tried it, then I would have been sitting here. मेरा नाम
प्रकाश कपूर है। मैं एक मिडिल फैमिली में जन्म लिया है और पूरी पढ़ाई ना कर पाने की वजह से घर के हालात के साथ मुझे टाइम से पहले नौकरी करनी पड़ी। उन सबको देखते हुए हमारे 3 भाई 3 बहनें थी, जिसकी जिम्मेवारी मेरे अकेले पिताजी के पे थी, जो कि समर्थ नहीं थे उस समय। तो उनको देखते हुए मुझे नौकरी करनी पड़ी। टाइम टू टाइम दोनों ने मिल के बच्चों को पढ़ाया, धीरे धीरे आगे बढ़े। पढ़ने के बाद फिर जो है थोड़ा संभलने के बाद फिर थोड़ा सा बच्चों की शादी का टाइम आया। सबकी बारी करके परिवार ने मिल के, मदर फादर ने मिल के सबकी बारी सबकी शादी करी। मेरा नाम सुनील प्रभा है। मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ और मेरे ग्रेजुएट हूँ। हिंदी ऑनर्स में मैंने ग्रेजुएशन किया था जाकिर हुसैन कॉलेज से। तो मेरे को शादी से पहले कोई ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी शादी जो है भाइयों ने मिलके की थी, क्योंकि फादर थोड़े बीमार रहते थे, तो ब्रदर्स ने मिलके की थी हमारी शादी। तो उसके बाद ही हमने जो स्ट्रगल किया है वो है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे ऊपर। और हमारे मदर ने बोला था कि जैसे हम तुम्हारी माँ है वैसे ही वो तुम्हारी मदर है, तो आपने पूरा अपना घर समझना है उसको। फिर जैसे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनके साथ हमने उनका पूरा साथ दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं हटे। उसके बाद जब हमारे बच्चे बड़े हुए तो हमने उनकी किया। उसके बाद कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला हमारे को अपनी फैमिली से। जिस समय हमारे बच्चे के सेटल होने का टाइम था, उस समय हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। इवन जब मेरे बेटी की शादी थी तब किसी ने साथ नहीं दिया, तो मेरे फ्रेंड सर्कल ने साथ दिया। फिर मेरे बेटे का सेटल होने का टाइम आया था, उसने इंजीनियरिंग की थी, तो तब भी हमारे इमीडिएट बॉस थे जो उन्होंने हमारी हेल्प की थी। तो और हमारे जो एजुकेशन लोन था वो भी कोई अननोन बंदा था जिसने हमारी भगवान का रूप बन के आया और हमारी हेल्प की। तो इन चीज़ों को मैं भूल नहीं सकती कभी भी, कि जिन्होंने ज़रूरत पे हमारा साथ दिया, तो वही हमारे लिए भगवान है, वही हमारे सब कुछ है। जब फैमिली होती है, फैमिली इसीलिए होती है कि भी जब हम जॉइंट फैमिली में थे तो हमारे को सबका साथ होना चाहिए था। तो जिस समय होना चाहिए था, जिस समय हम एक्सट्रीम लेवल पे थे, उस समय हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। हाँ, मैंने बताया ना, जैसे मैं फादर जब थे अकेले, तो उसके समय मैंने थोड़ी छोटी उम्र में ही ज्वाइन कर ली थी सर्विस। तो दोनों मिलके करते थे। धीरे धीरे हमारे रिलेशन में मामा जी थे, उनका कपड़े का व्यापार था, उनके साथ फिर हमने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप करी। उस दौर में हमारा बहुत अच्छा काम रहा, जिसकी वजह से जो है हम थोड़ा सा लक्ष्मी नगर में जो है अपना एक समय पैसा इकट्ठा करके थोड़ा मकान बना पाए। उस समय मकान बनाया, मकान अपने हाथों से बनाया था, हमने अपने पैसों से बनाया था। पर वो यह है कि समय के साथ जो है पता नहीं था, लिया तो हम नहीं था, पर बाद में जो है सब कहने लगे कि मदर के नाम होना चाहिए, तो मदर के नाम कर दिया। इसका बेनिफिट नुकसान ये हुआ कि मदर के नाम करते ही सारी ब्रांचें खड़ी हो गई कि उसमें मेरा हिस्सा भी है, उसमें मेरा हिस्सा भी है। उसमें जो लाइफ में सबसे बड़ा धक्का जो है वो आप कह सकते हो कि हमने यहाँ खाया, और विश्वास पे खाया। चैलेंजेस क्या, हमने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली तो वेरी फर्स्ट डे ही समझ लीजिए आप, शादी से वेरी फर्स्ट डे ही हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई थी। तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं था। हम घर में छोटे थे बहुत, तो लेकिन मम्मी पापा ने ये बोला हुआ था कि तुम्हारा घर वो है, ये नहीं है, तो आपने उसी को घर को देख के चलना है। तो जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा कि भी अब मेरे सिर के ऊपर है सारा कुछ, मेरे को बहनों की शादी भी करनी है और माँ बाप को भी देखना है, तो हम मिलके ही करेंगे। तो आई सेड यस, आई एग्री। तो बस वही उन्हीं के साथ मतलब जितनी मेरी सैलरी वगैरह आती थी सब हम घर में ही इस्तेमाल करते थे। कोई मतलब यूज़ अपने लिए स्पेशली नहीं करते थे।
जो ज़रूरत समझते थे पहले उसी को ही हम करते थे, ताकि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारी जो सिस्टर इन लॉ है वो हमारी सिस्टर ही हैं, एज ए सिस्टर, तो हमने उनको उसी तरीके से ट्रीट किया और ऐसे ही उनको खुशी खुशी हमने शादियाँ की उनकी। बस ये अफसोस होता है कि जब हमारे बच्चों की बारी आई तो उन्होंने उतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया। जैसे हमने उनकी शादी की तो हमारे भी कोई ना कोई आ ही गया काम करने के लिए। जैसे मेरी बेटी की शादी थी, मेरी फ्रेंड्स ने साथ दिया। मेरे बेटे का एडमिशन था तो कोई अननोन बंदा आके हमारे को एजुकेशन लोन के लिए हमारे को करके गया। फिर उसके जो ऑन जॉब ट्रेनिंग थी तो हमारा इमीडिएट बॉस ने हमारी हेल्प की, जबकि वो भी उस लाइन में नहीं थे, लेकिन उनके जो समधी थे, मतलब हमारे इमीडिएट बॉस के समधी, वो एयर इंडिया में थे, उनके आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने हमारी हेल्प की। तो मैं मतलब जैसे खुशी से पागल हो जाता है ना कि चलो किसी ने साथ दिया हमारा, तो मैं उनको आज भी याद करती हूँ। उसकी शादी में बस जस्ट ये बुरा लगा था कि भी जिसकी हमने सोचा था कि ये हमारी हेल्प करेंगे, उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। आउट ऑफ द वे जाके हमारी सारी फ्रेंड्स ने, जितने हमारे कुलीग्स थे, सब ने उन्होंने हेल्प की हमारी। उन्होंने, घर वालों ने, मतलब जैसे हम चाहते थे, जैसे हमने अपनी सिस्टर समझ के शादियां की थी, उस तरीके से नहीं मतलब हेल्प हुई। जैसे कि हमने सोचा था कि हमने इनकी शादियां की हैं, इनको कितना अच्छा लगता था, मैंने अपना सारा गोल्ड सिल्वर सब दे दू के तब उनकी शादियां की थी, लेकिन मेरे को अपनी बेटी की शादी के लिए हमारे पास कुछ नहीं था देने के लिए। मैं यही कहूँगा कि आदमी को चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, समय टू समय बदलना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। घबराने से जो अच्छे काम हैं चाहे बुरे काम हैं, वो कोई आदमी पूरे कर नहीं पाएगा। अगर आपने अपने घर को, बच्चों को देखना है और एक एम बना के चलोगे और एक सिंसियरली आप उसको पालन करोगे, तो छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम वो आसानी से होता जाएगा। जरूरी नहीं होता कि पैसा ही सब कुछ होता है। पैसे के साथ अगर लगन और मेहनत है आपकी, तो आप काफी हद तक निकल सकते हैं। कि हमारे समय में भी लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की। इस चीज़ को हम सामने रखते हुए कभी ये नहीं सोचते कि ये इसको देना है और इसको नहीं देना, इसका करना और इसका नहीं करना, ये फर्क नहीं समझते। एक्सपीरियंस क्या, नेकी कर कुएं में डाल। देखो, अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो हमने शायद उनकी हेल्प की, इसलिए भगवान ने हमारे को ऐसे किया। हम तो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं की, किसी ने तो आके की। हमारी बेटी घर में तो नहीं बैठी, अपनी शादी तो कर ली, उसकी शादी तो हमने कर दी ना। तो अब एक हाथ दे एक हाथ ले, गिव एंड टेक वाली बात है कि हमने कहा चलो ठीक है, हमने उनकी की, हमारी उन्होंने, भगवान ने कर दी, किसी भी तरीके से की। देखिए वही वाली बात आ जाएगी, अगर आप अच्छा करोगे तो आपके सामने अच्छा ही आएगा रिस्पॉन्स। इस बात को आप मान चलो। हेल्प के लिए कभी आप पीछे मत करो, आप समर्थ हो तो जरूर करो, थोड़ी करो ज्यादा करो। पैसा नहीं है तो आदमी शारीरिक भी हेल्प कर सकता है, यदि परेशानी में है तो उसको सलाह दे सकता है, उससे मिल के बात करके उसको हल्का कर सकता है। जरूरी नहीं है कि पैसा ही है तो पैसा देंगे तो बाकी सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सर, जैसे कि इस प्रोग्राम की हमेशा एक चाहत होती है कि हर शख्स की अपनी एक कहानी है, अपनी एक स्ट्रगल है, अपने सपने हैं। तो आपके क्या सपने रहे हैं और कैसे उन सपनों को पूरा किया आपने? ऐसे है जी कि पढ़ाई ऑलमोस्ट 20 साल करी। पहले सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल में स्कूलिंग करी, फिर 1 साल गवर्नमेंट कॉलेज में, फिर टूल एंड डाई मेकिंग का डिप्लोमा किया जी, हरियाणा गवर्नमेंट की। उसके बाद फिर अपना काम तो था फादर का, उसके साथ ज्वाइन कर लिया, काम करते थे। काम करते करते जो भी एक्सपीरियंस मिला वो देखते रहे। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मन में आया कि अपना कुछ करना चाहिए अलग से। कुछ क्या है कि जनरेशन गैप समझ लीजिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समझ लीजिए। हमारे फादर स्ट्रिक्ट थे, वो हमें कई बारी बातें सुनाते थे। तो एक दिन मन में आया कि हम अपने लेवल पे कुछ
खुद करेंगे। अच्छा अच्छा तो मदर से बात की जी। कि भाई फादर को बिना बताए कुछ पैसे मिल सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि 5 पैसे नहीं दूंगी उनको बताए बिना। फिर बैंक से बात की तो भाई मेरे को लोन चाहिए। बैंक मैनेजर ने कहा कितना लोन चाहिए, मैंने कहा 30 लाख। ये उम्र कब थी, मतलब क्या एज थी? 1983 की, आई वॉज 23। 23 साल में। हाँ। ये दोस्तों बड़ी जरूरी बात है। 23 वर्षों में हमें यही नहीं पता चलता कि हम करियर को क्या ऑप्ट करें, लेकिन आपने मतलब 23 साल में आपको पैसों की जरूरत पड़ गई थी। हाँ भी अपना काम करना था, तो बट ऑब्वियस है पैसे तो चाहिए। बिल्कुल। फिर बैंक से बात की तो उसने मेरे पेपर, सारा पेपर वर्क उसने बनाया। प्रोजेक्ट तो मैंने दिया उसको, लेकिन सारी वर्कआउट उसने करी। उसने करके फिर फरीदाबाद में उतनी लिमिट नहीं थी पैसे डिस्पर्स करने की, ना दिल्ली में थी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में, तो पटियाला जाना पड़ा। तो पटियाला में भी अड़चन आ गई। तो वो जो जीएम था बैंक का, उसने कहा भी ये जस्टिफाइड नहीं है, मतलब इतनी छोटी एज में इतनी ज्यादा 23 साल का लड़का और 30 लाख मांग रहा है। तो फिर मैंने उसको कहा भी क्या जस्टिफिकेशन है बता दो। बिल्कुल। तो 1 घंटा सोचने के बाद कहा अभी जितनी तेरी उम्र है उतने दे दूंगा, 23 लाख दे दूंगा। तो 23 लाख रुपया बहुत बढ़िया सैंक्शन हुआ जी। अकाउंट खोला, फिर अपना कारोबार में लग गए पैसे। तो सबसे बड़ी बात थी मशीनरी भी फादर से लेनी थी। अच्छा। तो सबसे पहला ड्राफ्ट फादर के नाम से ही बनाया। तो उनसे मशीनरी दी, उन्होंने दे दी, ड्राफ्ट रख लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने टैक्स काटने के बाद बाकी के पैसे 1 हफ्ते के बाद वापस दे दिए। अच्छा तुम जी। अपने बिजनेस में लगा लो। लेकिन एक बात साथ में कह दी कि अगर कोई पैसे मांगने वाला घर पे आ गया तो गेट आउट, बोरी बिस्तरा उठा ये के यहाँ बाहर। कि पंजाबी परिवारां ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। अच्छा। तो काम चलाया, फर्स्ट क्लास चलता रहा काम। और कोल इंडिया लिमिटेड का काम भी करा, सारी ट्रांसपोर्ट्स जितनी थी, पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज। शुरुआत से ही आप ऐसे ही थे? बचपन में पढ़ाई के टाइम पर हर बंदा ये सोचता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद एक स्टेबल प्रोफेशन में जाऊं, गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, या अपने ही बिजनेस में जाकर स्टेबिलिटी जाऊं। आपने इससे हटके क्यों मतलब एक आउट ऑफ फ्रेम वर्क करना पसंद किया? ऐसे है जी, पढ़ाई में कोई बहुत अच्छे नहीं थे हम, वी वर एवरेज, यू कैन से बैक बेंचर्स थे हम। तो बैक बेंचर्स थे, लेकिन बैक बेंचर्स की भी अपनी एक क्वालिटी होती है, वो रिस्क ले जाते हैं, दूसरे नहीं लेते। तो हमारे कभी नौकरी करने की तो सोची नहीं। अच्छा, उस टाइम पे ऐसा कुछ व्यू होता था कि नहीं पढ़ाई? नहीं, चांस मिले। चांस तो मेरे को यूके से भी मिला कि तू आजा यहाँ ज्वाइन कर ले, एक कंपनी थी। तो मेरे को चांस केनिया में भी मिला, एक जियोथर्मल लगना था, उन्होंने कहा कि तू हमारे पास रुक जा, लेकिन नहीं किया। फादर कहते थे कि अपना काम कौन करेगा, फिर अगर नौकरियां करनी है तो नौकरी करने की तो ड्रॉप ही कर दिया आइडिया। तो अपना ही काम करते रहे। तो अपने काम में ठीक है, दाल रोटी मिलती थी फर्स्ट क्लास, इज्जत भी थी, और करते रहे। शौक तो थे करने के काम, शौक तो चाहिए। शौक तो था ही, बिना इंटरेस्ट के कुछ भी चीज कुछ भी नहीं है जी। देखो उसमें मेहनत जरूर ज्यादा लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है अपने काम में, तो इसलिए अपना काम करना ही बेटर समझा। ਅੱਜ तक अपना ही कर रहे हैं। वैसे भी ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂਰਬਾਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭੇਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। और उसके बाद फिर वो प्लांट ड्यू टू टैक्सेशन प्रॉब्लम्स हमने बेंगलोर में सेल आउट कर दिया। अच्छा। तो लेकिन अपना दूसरा काम तो करते ही रहे साथ में, और काम करते करते विच काफ़ी चांस आए, और भी बिजनेस शुरू किया। आपने इतने बिजनेस चेंज किए, ठीक है, और हर बिजनेस के बाद आपको एक तरह से मोटिवेशन मिला, या किस तरह से आपने ये काम करने की जज्बे अपने अंदर पैदा किए, तो मुझे थोड़ा सा इनका ओवरव्यू बताओगे किस तरह से आपने कौन सा प्रोफेशन चेंज करते रहे? एक्चुअली प्रोफेशन तो ज़रूरत के हिसाब से
चेंज किए गए। बेसिक बिजनेस तो इंजीनियरिंग था, वो तो आज भी है, उसको कंटिन्यू कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे करे काम। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के काम करे, अच्छा, उनके रिसर्च सेंटर्स में काम करे, जहाँ कोई एक फॉरेन की कंपनी थी एपीकॉम इटली की, उसके साथ जुड़े रहे, मतलब फॉरेन के भी प्रोजेक्ट आपको मिलते रहे। आज भी एक कंपनी है जो रिसर्च करती है इंजन्स पे, और ये वो सेंसर्स बनाते हैं किसलर, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो क्या है कि हमारा टूल रूम टाइप काम है शुरू से ही, तो टूल रूम का काम तो आज भी कर रहे हैं। तो लेकिन बीच में जो प्रोजेक्ट और लगाए वो भी चलाए और करते रहे। और वैसे भी क्या है कि सारे लोग ना प्रोडक्शन के काम एक जैसे काम करते हैं, हमारे को कोई एक जैसा काम नहीं देता। हमारे को तो कोई जो बुलाते हैं वो कोई फंसे हुए काम के लिए बुलाते हैं। या ਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸਮਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਗਜਟ ਹੋਇਆ। NPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਏ ਸੀ, ਰਤਨ ਟਾਟਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, आई के गुजराल सी उस टाइम पे, उन्होंने नाल भी मिले। सर, आजकल के जो युवा एंटरप्रेन्योर हैं वो अपने बिजनेस तो करना चाहते हैं, बट बिजनेस की बारीकियों की बात करूं या बिजनेस इनसाइड की बात करूं तो उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? ऐसे है, आज की डेट में अगर किसी यंगस्टर को बोलो ना एक लेटर लिख दे, तो उससे लेटर नहीं लिखी जाएगी। ही डोंट हैव द कंटेंट। वो लेटर लिखना भी अपने आप में आर्ट था, न्यूज़पेपर पढ़ना भी अपने आप में एक हैबिट है। तो अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ज़रूर ज्ञान लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं तो यही राय दूंगा। ऐसे मैं एक एडवाइस और देनी चाहूँगा कि कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मार्केटिंग, अपना बिजनेस और उसमें अपना ट्रेडमार्क, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक चीज़ है। अगर उसको अपनाया जाए तो आदमी ज़्यादा तरक्की कर सकता है, और इसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा बनेगा। क्योंकि वो आपका अपना है। और मेरे ख्याल से मेरी ऑडियंस को भी अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। ज़िंदगी जीने का जो एक सही तरीका तभी मिलता है जब आप कहीं ना कहीं अपने आप में वो जज्बा पैदा करते हो। दोस्तों, ये कभी मत सोचो कि आप एक बार हार गए हो तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अ लिटिल बैंड इज़ नॉट अ एंड। लिटिल बैंड हमेशा आपको जिंदगी में एक नई उड़ान भरने के लिए एक छोटा सा पॉइंट मिलता है, एक छोटी सी चिंगारी मिलती है। बस उसी का इंतजार करें और आगे बढ़े। यही दुआ के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सर, मैं ये बताना चाहूँगी अपने बारे में कि मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ और वहीं मेरी एजुकेशन भी रही है और वहीं मेरी मैरिज भी हुई है। पर कुछ फैमिली बैकग्राउंड्स, कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे, डिस्प्यूट कुछ रहे ऐसे कि मुझे दिल्ली छोड़नी पड़ी। तो दिल्ली छोड़ने के बाद फिर अपने आप को एस्टेब्लिश करना नए सिरे से छोटे बच्चों के साथ, तो थोड़ा सा मुश्किल तो रहा मेरे लिए काफ़ी। पर फिर भी आज जहाँ हैं तो हम तो सिर्फ अब याद ही कर सकते हैं उन चीज़ों को। मैं आपकी नम आंखों को पढ़ सकता हूँ, मुझे बहुत भावुकता हो रही है। फिर ऐसा कौन सा मोड़ आया कि आपको अपने इन लॉस को छोड़कर, मतलब पूरे परिवार के साथ अलग से सेटअप करना फिर से
एस्टैब्लिश बिजनेस को छोड़कर फिर से बिजनेस स्टैंड करना, वो एक बड़ा मतलब इमोशनल एक लाइफ में मोड़ आता है, तो वो कैसा आया आपके? वो ऐसे था कि 5 साल तक तो मतलब फादर के साथ काम करते थे। ठीक है, मेरे हस्बैंड, आपके हस्बैंड? तो हाँ, मेरे हस्बैंड उनके साथ ही काम करते थे। उसके बाद उनकी जब डेथ हुई है, ओके, हाँ, इन फादर इन लॉ की जब डेथ हुई है, तो जो उनका बिजनेस था वो ये मतलब भाइयों में आपस में थोड़ा सा डिस्प्यूट था कुछ चीज़ों को लेकर। तो एक तरह से ये समझिए कि जितना बिजनेस था वो सब उन्होंने सेकंड नंबर के जो इनके ब्रदर थे, जो इनसे बड़े थे, उनके नाम से कर दिया था। ओह माय गॉड। हाँ, उनके नाम से ही कर दिया था। तो फिर उसमें मेरे हस्बैंड का तो कोई रोल ही नहीं रहा, कुछ नहीं कर सकते थे ना। तो क्या बीइंग एज अ एल्डर उन्होंने कभी नहीं ये चाहा कि मैं इस बात पर मतलब केस करूं या समथिंग ऐसा कुछ? नहीं, तो वो क्यों? नहीं, कुछ नहीं उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि वो चाहे कुछ भी था, वो मतलब उनकी अपनी भी तो फैमिली थी ना। भी मैं थी, भी बच्चे थे 2 छोटे, तो फिर उनको ये लगा कि अब अगर कभी कुछ फायदा भी नहीं है करने का, तो इसलिए उन्होंने छोड़ ही दिया सब कुछ। फैमिली भी छोड़ दी, घर भी छोड़ दिया, इवन जिस घर में हम रहते थे हमने वो घर भी छोड़ दिया। तो 2 छोटे बच्चों को लेकर और इवन सब कुछ छोड़कर हस्बैंड को साथ लेके हम एक किराए के मकान में रहने लग गए। माय गॉड, मतलब तो, एक भरा पूरा परिवार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक जगह को छोड़कर जिसकी मालकियत भी आप हैं, ऑनरशिप भी आपके पास है, उसको छोड़कर आप एक अलग शहर में रह रहे हैं और किराए के घर में। जब हस्बैंड जो एक काम करते हैं, मतलब उस वक्त तो ये था कि आप अपने एम्प्लॉयज़, आपके घर में 10 लोग काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में, और फिर आप सोचोगे कि आप किसी और के अंडर काम करेंगे। माय गॉड। तो ये सब थोड़ी सी चीज़ें ऐसी थी कि जो उनको मतलब उनके दिमाग में नहीं आता था कि मैं कहीं जॉब करूंगा या कुछ ऐसा करूंगा। इसलिए उन्होंने अपना थोड़ा सा एस्टेब्लिश करना चाहा, क्योंकि मैं थोड़ी प्रिंटिंग की लाइन में थी, डिजाइनिंग में थी, डीटीपी ऑपरेटर। मैं जहाँ जॉब करती थी, बच्चों की वजह से मैंने वहाँ जॉब भी छोड़ दी थी कि बच्चे छोटे थे, उनको कौन देखेगा, वो जॉब भी छोड़ दी। फिर उसके बाद हस्बैंड का भी काम खत्म हो गया, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम। फिर मेरे पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। पेरेंट्स मतलब? मेरे मम्मी पापा, मेरे जी, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर, उन लोगों का मेरे को मतलब बहुत सपोर्ट रहा है। आफ्टर मैरिज भी सपोर्ट बहुत रहा है? हाँ, आफ्टर मैरिज तो देखा जाए तो मेरे मम्मी पापा का ही ज़्यादा हमें सपोर्ट रहा है। इन लॉज की तरफ से तो नहीं था कुछ भी। मतलब फैमिली जो बिजनेस जहाँ ख़त्म हुआ, हमारा बिजनेस ख़त्म होने के बाद, क्योंकि जॉब तो मैंने छोड़ी थी बच्चों की वजह से, तो बिजनेस भी नहीं था, जॉब भी नहीं थी, तो इसलिए कुछ तो शुरुआत करनी थी। तो वहाँ से फिर मैंने अपना वहाँ पर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सपोर्ट किया, मुझे कंप्यूटर लेके दिया, सिस्टम लेके दिया। वो मैंने घर में ही अपने सेटअप बनाया, वहीं पर ही हमने उसकी शुरुआत की। मैं डिज़ाइनिंग का काम करती थी। मेरे हस्बैंड, मैंने एक कमरे में एक यूनिट अपना बनाया जहाँ हम सिर्फ प्रिंटिंग का काम करते थे। वेरी गुड। तो मेरे हस्बैंड को फिर मैंने अपने साथ लगा के, वो उन्होंने, क्योंकि वो भी एकदम फील्ड चेंज हो गया उनका, हाँ, उनके लिए भी एक नया हो गया, तो जॉब तो वो कहीं कर नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने भी मेरे साथ मिलकर, हम लोगों ने, दोनों ने मिलके, हमने काफ़ी टाइम तक कोई 3 या 4 साल तक हम इसी प्रोफेशन में रहे कि वो मेरे साथ काम करते रहे। मैं यहाँ डिज़ाइनिंग का काम धीरे धीरे जैसे मतलब लोगों को पता चला कि यहाँ पर काम, इसका प्रिंटिंग का काम होता है या कैसे, कुछ प्रिंटिंग प्रेस वाले भी जुड़ते गए, कुछ कंपनीज भी जुड़ती गई साथ धीरे धीरे। तो 3 या 4 साल में थोड़ा ग्रोथ हो गया कि हमें लगने लगा कि हम अपनी फैमिली को संभाल सकते हैं। पर वही बात है, धीरे धीरे जैसे वहाँ से भी एक तरह से सेटअप होने के बावजूद भी जहाँ हम रहते थे रेंट पे जी, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होने लग गया, क्योंकि काफ़ी लोग आते जाते थे, भी काम बढ़ेगा तो लोग आएंगे। अच्छा। तो लोगों को भी ऑब्जेक्शन होती थी कि पता नहीं, क्योंकि वही मेल डोमिनेटिव वाली बात जहाँ आ जाती है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। तो उन लोगों को ऑब्जेक्शन आसपास में ये होता था कि वो लोग कहते थे कि यहाँ ऐसा कौन सा काम होता है कि लोगों का आना जाना बहुत है।
तो कुछ वो ऐसी हाँ, नजरें वो भी होती हैं बिल्कुल। सोसाइटी की। ये सब कुछ भी मैंने फेस किया है, इन चीज़ों को भी। तो उसके बाद फिर वहाँ से पूरा सेटअप उठाया, फिर दूसरी जगह लेकर गए। तो अच्छा, वहां से भी आपने सेटअप चेंज करके और कहीं गए? हाँ, वहाँ से भी फिर मैंने सेटअप चेंज किया, मैंने वो जगह बदली। फिर पहले घर में होने की वजह से ये था कि मैं फैमिली को देख लेती थी, दूर जाने की वजह से था कि बच्चे छोटे थे, मैं उनको देख नहीं पाती थी। तो मेरे लिए फिर वही पुरानी चीज़ें शुरू हो गई। तो वो तो फिर हम वापस जाना शुरू हो गए कि थोड़ी सी ये इन चीज़ों की वजह से मतलब काफ़ी मुझे इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ा, लोगों को भी सुनना पड़ा। बोलते थे ठीक है, अभी मुझे तो अपनी फैमिली देखनी है ना, तो हस्बैंड तो साथ थे ही, इसलिए ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करते थे हम लोग। मतलब कहने का मतलब है कि शादी के बाद अगर इंसान को किसी इंसान की जरूरत पड़ती है तो वो हम सफ़र की होती है। और आप अपने लिए मोटिवेशन किस में ढूंढते हैं? मोटिवेशन वाली जहाँ तक बात है कि जब बच्चे साथ में होते हैं ना, और जब पता होता है कि कैसे घर चलेगा, तो मोटिवेशन खुद अपने आप को ही देना पड़ता है। मतलब हम खुद अपने आप से ही हो जाते हैं सही मोटिवेट। जब तक, क्योंकि हमें पता है बच्चे आज छोटे हैं, कल स्कूल जाएंगे, खर्चे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो तो खुद अपने आप को ही मोटिवेट करना पड़ता है कि हमें अब आगे करना क्या है। तो बस वही सब चीज़ें थी जो धीरे धीरे खत्म तो खैर पूरी तरह से नहीं हुआ था जी, पर फिर भी प्रॉब्लम्स तो फिर शुरू हो गई थी दोबारा से। फिर तो वो शहर ही छोड़ दिया, दिल्ली छोड़ दी। दिल्ली को ही छोड़ दिया। दिल्ली को ही छोड़ दिया। बहुत खूब अरिजीत जी, सच में बहुत इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने को आपसे मिल रहा है। और मेरे ख्याल से मेरे जो दर्शक होंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा कि ज़िंदगी में हारने का नाम नहीं है। ज़िंदगी में हर हार में एक जीत छिपी होती है, हर टूटने के पीछे एक जुड़ाव जुड़ा होता है, जो मैंने आपकी बातों से सीखा है, आपके स्ट्रगल से सीखा है। बिल्कुल जी। हाँ, हार के जीतने वाले को हर जीत कहते हैं। बहुत खूब। लेकिन एक माँ, एक बहन, एक दोस्त, एक पत्नी के रूप में जो इनका रोल मैंने देखा हुआ है, सोसाइटी में जो इन्होंने निभाया हुआ है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत स्नेह, बहुत प्यार देते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम रैप अप करना चाहूँगा। बस आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि यदि आपको इस कहानी से सीख मिलती है, यदि आपको लगता है कि ये जो एपिसोड है आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, कहीं ना कहीं आपको प्यार देता है, तो अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को ज़रूर स्प्रेड कीजिए, इसे शेयर कीजिए, अपने दिल से कमेंट ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमें हर तरीके से आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का इंतज़ार रहता है। ये हमें मोटिवेशन देता है। तो इसी सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। रखिए अपना ध्यान और इसी तरह से हमारे इस प्रोग्राम को अपना प्यार दीजिए, क्योंकि आपके प्यार के साथ ही हम आगे बढ़ना पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। मेहमान के साथ आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। दिल्ली में पले बड़े कुलदीपक गोस्वामी जी का परिवार पार्टीशन के बाद कश्मीर से दिल्ली आ गया। 7 सदस्यों के परिवार में 4 बहनों के ये इकलौते भाई थे। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इन्हें अपने परिवार से पढ़ाई के लिए कुछ खास प्रोत्साहन या सहयोग नहीं मिला। But being the strong-willed man that he was, he strived hard to complete his studies before taking up a job to fulfill his family responsibilities. तो चलिए जुड़ते हैं आज के हमारे मुख्य मेहमान के साथ, कुलदीपक गोस्वामी जी के साथ। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो मोटो होता है, हमारा जो मोटिव होता है, वो लोगों को इंस्पायर करना होता है। तो जो जिक्र मुझे लोगों ने बताया, आज अपनी जुबान बता दीजिए, कुछ शब्द अपने बारे में बताइए। सबसे पहले, My life has been full of struggle. So I've been struggling right from the childhood. The day I was born with so much of poverty, after partition, when my parents settled, thrown from Kashmir to Delhi, and when my father came to Delhi, and I was not born at that time, but my father had a lot of financial ups and downs, difficulties, and I was born 5 years after that, 47. But by the time my father was
really struggling hard to survive. I was studying in an ordinary school, government school, where my admission was done by my parents, but I still had no choice but to study there only. With great difficulty, I studied till 11th class. Still 11th class, my father, my mother, they never supported me any tuitions or any guidance for my higher studies. They never planned for my future. I was treated just like an ordinary child. And we were 6 family members. So with great difficulty, I could qualify 11th class. But after 11th class, when I told my mother I want to study and do my graduation from the university, so my mother spoke to my father and he said, sorry, we can't afford, you just join ITI for the apprenticeship. So I said, I will not go to ITI, I would like to study, further do my basic education, basic qualification of graduation. At that time, I never wanted to just do my 10 plus, 9 plus 11 and then do some job somewhere. So मैंने फिर वो job क्या कहते हैं एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करा. So fortunately मेरी सिस्टर ने बड़ी मेरी हेल्प करी. तो जब मैंने आके घर में न्यूज़ दिया कि मैंने एडमिशन ले लिया है, so my father gave me a slap कि भाई तेरे को तूने एडमिशन क्यों ली, जब तेरे को मैंने मना करा था कि तू ITI में जाके अप्रेंटिसशिप करेगा और यहाँ पर तू एडमिशन लेके आ गया 3 साल तक तू पढ़ाई करता रहेगा तो टाइम को खराब कर रहा है और हमारा क्या होगा, हमें कौन लुक आफ्टर करेगा. तो मैंने कहा. At the young age of 25, he lost his father to chronic disease. At the time, he was working at the All India Radio at a sub-junior level, but the job with the meager pay couldn't alone provide for his family of 7 people. He was pushed to quit his job and start a venture of his own, dealing in pest control, which is in operation till date. फादर की डेथ हुई तो मेरे को सबसे पहले अपनी सिस्टर्स की मैरिज करनी थी. रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी. तो मैंने then I started a business. I started a pest control company in 1973 February, 10th February. So within 6 months I became a very big success. Out of blue, my name was known in South Delhi as a pest control person has come to Delhi, and I had no competitor. I was the only man running that company those days in 73. मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसा भी कायदा हो, देर से किस्मत खुलने वालों का दुगना फायदा हो. Mr. Kuldeepak took his business to stupendous heights and married all his 4 sisters into good families. Mr. Kuldeepak's life took a pleasant turn and took him to the love of his life, Miss Geeta, जिनको एक नजर देखते ही इन्होंने उन्हें अपना जीवन साथी बनाने का मन बना लिया. वैसे बहुत मुश्किल होता है दोस्तों कि आपको एक नजर में प्यार हो जाए. ये हमने फिल्मों में देखा हुआ है, वन साइड लव. आज के टाइम पे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता. आपकी जिंदगी में कैसे? नहीं, मैं एक्चुअली जिस तरह की मेरे को वाइफ चाहिए थी मेरे को वैसी मिली है. अच्छा. आई वांटेड अ वेरी सिंपल एंड गुड एट हार्ट. तो मैं उनको जब मिला तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद हर. जिस तरह से सर ने जिक्र किया अपने मोहब्बत का, अपने प्यार का, एक नजर में दिल के करीब आने का, उस हसीन चेहरे से तो आपको मुखातिब करते हैं. गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. इतना प्यार, इतनी मोहब्बत ये कब से शुरू हुआ और वो टाइम कौन सा था? हमारी मैरिज हुई थी 1977 हुआ, क्योंकि ये मेरा हमेशा जब से मैरिज हुई तब से इन्होंने इतना ऐसा हस्बैंड कोई मिल नहीं सकता जितना इन्होंने मेरा ध्यान रखा. Being a firm believer in the capacity of education to empower people, Mr. Kuldeepak put in great effort to provide the best education and holistic development opportunities for both his kids. His son is an MBA graduate from a renowned institute and works at a senior position in a private company, while his daughter is a renowned philosopher who has many accolades to her name and has co-authored several books. अच्छा, अब बात करते हैं परिवार में बच्चे. जब प्लानिंग शुरू हुई तो बच्चों के बारे में बताएं. कितने आपके बेटा बेटी हैं? I have got a son and a daughter, and
और मेरे को शुरू से ही, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, मैंने सोचा था कि बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा। मेरे बच्चे दोनों बहुत सक्सेसफुल हैं। मेरी बेटी ने लेडी श्री राम कॉलेज से एमफिल करी हुई है और फिलॉसफी में। उसने किताबें लिखी हुई हैं, इतनी बढ़िया किताबें उसकी लिखी हुई हैं। She has decided not to get married because being a philosopher, she is reading. It is her choice. She wants to get married or not. That I have left it on her. My son is married. He's got a son. In the end, it's not the years in your life that counts, it's the life in your years. जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने के बाद भी कुलदीपक जी का दिल समाज सेवा के लिए उत्सुक रहा है। He believes in one good act a day. जो मैनेज आपने किया तो उसके बाद लगा नहीं कि नहीं, I think I left something, कि मुझे वो चीज करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं की। क्या ये मलाल रहता है अंदर? मलाल तो बहुत रहता है, क्योंकि I believe in doing one good act a day. That is my philosophy of life. I always prefer to do at least one good act a day in which I can do some good to the humanity, for a society, like helping people who cannot cross a road, helping people who need if I can help them, I can help them financially. And in my social work job of my Delhi University, which I did, I learnt a lot on social work. So social work में मैंने बहुत, आज तक मैं 70 साल का होने वाला हूँ, तो मेरे को अभी भी सेवा करने का दिल करता है। Senior citizens have historically represented wisdom earned through a life filled with experiences. They serve as an invaluable source of skill and knowledge. This is reflected beautifully in the lived experiences of Mr. Kuldeepak. We don't have a future if we refuse to accept the wisdom of the former generation. Having said that, Mr. Goswami has a very beautiful message for the coming generations. फिर लोगों के ताने सुनना, उनको मतलब नजरअंदाज करके खुद को आगे बढ़ाना, क्रिटिक्स भी होंगे आपकी लाइफ में। तो इतना कुछ होने के बावजूद आज के युवा को एक संदेश क्या देना चाहेंगे? इसी मेरा जो बेसिक एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, वो यही रहा है कि इंसान को जितनी मेहनत हो उतनी करते रहना चाहिए और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमें खुद को बहुत सीखने को आपसे मिला। और मैं ये आस करता हूँ, ये होप करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको भी यकीनन एक ऐसी सीख मिली होगी। नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है द सीनियर सागा हर बूंद में इंद्रधनुष के इस नए एपिसोड में। यहाँ पर हम रूबरू होते हैं सीनियर सिटीजन्स की लाइफ से, उनके अचीवमेंट्स, उनके सपने, उनके डिज़ायर्स, उनके एम्बिशंस से। फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ इस एपिसोड में। आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं शिवजीत सिंह। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए आज। थैंक यू। अंकल, क्या चीज़ ज़रूरी लगती है आपको आज की डेट में? आज आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आदमी के अंदर में प्रेम की भावना ज़्यादा होना चाहिए। अब एक दूसरे से जो है इस तरह से हम आपस में बातें करें जिससे कि किसी को तकलीफ नहीं हो। यदि कोई कुछ गलत बोलता है तो चुपचाप सुन लेना चाहिए। चुपचाप सुन लेना चाहिए, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। पेशेंस कम है ना अंकल आजकल की हमारी जनरेशन में। नहीं हाँ। तो जो है सो इसके सुनने के बाद में ही हम अपना रिप्लाई दें उनको, क्या बोले, मैं उनको क्या बोलना चाहिए था। ओके, सोच समझ के, मतलब पेशेंस के साथ बात करना चाहिए। आपने रिलेशनशिप्स को चेंज होते हुए कैसे देखा? जैसे आपके पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप थी अंकल? जो कह दिया वो मान लिया, या कैसे रिलेशनशिप थी? उस समय ऐसा था कि आदमी ज़्यादा जो है पेरेंट्स को बातों को नहीं काटता था, लेकिन मदर के साथ में ऐसा नहीं होता था। मतलब मदर के साथ में आदमी बोल लेता था। अच्छा, मन की बात कह देता? कह देते थे, लेकिन पेरेंट्स के सामने नहीं आदमी बोलता। पापा के सामने नहीं बोलता पापा नहीं कह। आपको लगता है कि आपके बच्चे आपसे लेकिन शेयर कर लेते हैं? हाँ, सबसे अपने लाइफ में मैंने जो है कुछ शिक्षा ग्रहण किया अपने फैमिली के थ्रू। हमारे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, और जो है सो उससे क्या होती थी कि
अपने मन की बातें चाहे और कुछ चीज़ें आदमी नहीं शेयर कर सकता था। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, हम अपने फैमिली को मतलब इस तरह से हम मैनेज करें आकि हमारे बच्चे हमसे खुलकर बातें करें, अपनी हर इच्छा को करें। और मैं उनको ये भी कहता था कि तुमको जो भी इच्छा हो तुम बताओ, और मुझे जहाँ तक हो सके हम लोग उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और इस नाते मेरे लड़का जो है मैं क्या बोलूं, बहुत आज्ञाकारी रूप में निकला। हाँ, और वो आज किस समय भी जो है वो मॉर्निंग में उठने के बाद में मम्मी पापा को पाँव छू के प्रणाम करता है प्रत्येक दिन। आपको बोलना नहीं पड़ता है, खुद ही करता है? एकदम नहीं। हाँ, इसके बाद में आके बैठ के साथ में चाय पिएगा। हाँ, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात लग रही है मुझे। बहुत बड़ी बात होती है ये। एक्चुअल में ये चीज़ें मन में जो है, हार्ट में जो छूता है, जो हमारे बच्चा मतलब है। आपके पापा का कैसा रिएक्शन था जब आपने बोला कि हमें माइनिंग में जाना है? अंकल ये तो आपको खुल के बताना पड़ेगा। एक्चुअल में हमने पापा से हमारी मम्मी जो है नहीं चाहती थी। अच्छा। क्योंकि मम्मी हमारी जो थी बहू के प्रति अब प्रेम की भावना कहें चाहे जो कहें, उनकी सेवा बहुत करती थी। और वो चाहती थी कि यदि हाँ ये यही रहे। और दोनों चीज़ थी प्रेफर करने का कि आने वाले दिनों में बच्चे को एजुकेशन नहीं हो सकता था एक बिजनेस फैमिली के अंदर में। जो हमने फील किया, एक फोकस नहीं रहता है कई बार। हाँ, शायद कि पेरेंट्स टाइम नहीं देते हैं, मदर जो है एजुकेटेड नहीं होती है, इसलिए बच्चों को जो है सो बेसिक शिक्षा और आगे जाने के पर में जो उनको जो उनका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था वो स्टैंडर्ड नहीं मिलता है। बच्चे अपने मेहनत से जो है सभी कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है उनको जो स्टैंडर्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो आज के समय में जो पेरेंट्स जो है एजुकेटेड हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और अच्छे स्कूल में उनकी एडमिशन्स होती है और वो जो है सो उनके स्टैंडर्ड अच्छा बनता है। मैं ये बात अंकल ने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि सिर्फ फादर का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, मदर का पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अंकल, जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है। इसी बात पे मुझे आपसे ये बात भी पूछनी है, और मुझे सबसे अच्छा अंकल ये लग रहा है कि आप सिर्फ कह नहीं रहे हैं, आपने कह के चीज़ों को करा भी। आपने आंटी को बहुत पढ़ाया अंकल शादी के बाद। मुझे तो लगता है कि हमने ठीक किया है। हाँ, पहले तो इस ख्याल से कि यदि जो है हमारी वाइफ नहीं पढ़ी लिखी होती या नहीं पढ़ती है तो मैं तो दिन भर जो है सो अर्निंग करने के ख्याल से हम बाहर में रहेंगे, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन देखेगा। तो इसलिए जो है वाइफ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस ख्याल से हमने जो है सो वाइफ को जो शिक्षा देने की जो हमारी ये थी, तो हमने उनको हर तरह से सपोर्ट किया कि आप जो है सो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए। हालांकि एक्चुअल में वो पढ़ने में तेज थी ही, यदि वो पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, तेज नहीं होती, तो वो पढ़ नहीं सकती थी। क्योंकि वो हमेशा हमको जो है याद दिलाती थी कि हम पढ़ने में बहुत तेज थे। हमने जो है अपने यूनिवर्सिटी में जो है सो हमने रैंक लिया है। हाँ, और मुझे जो है सो यहाँ तो पढ़ने को नहीं मिला, तो मैंने मन में सोचा तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण कर दूंगा मैं। तो फिर मैं उनको जो है सो होम्योपैथी का डिग्री कोर्स कराया। अंकल, क्या आपको ऑपोजिशन, क्या आपको कहीं ना कहीं से अपने घर में या समाज में कहीं हुआ था कि अरे शादी के बाद क्यों पढ़ा रहे हो? आपको ये सब फेस करना पड़ा? हाँ, फेस करना पड़ा मुझे। हम अपने फैमिली में फेस किए हैं। अच्छा। अपने मदर से, फादर से फेस किए हैं। भाई को डायरेक्टली मुझे किसी ने नहीं इसके लिए टोका है। हाँ। लेकिन मुझे मालूम होता था कि जरूर घर में इस तरह की बातें होती होगी। मतलब इतना कॉमन नहीं है, शादी के बाद पढ़ाई नहीं था। अभी भी नहीं है मुझे लगता है, लेकिन उस समय नहीं था। तो क्या किस तरह का ऑपोजिशन आप फेस करते थे?
जैसे पढ़ने के लिए नहीं भेजना। अच्छा। हाँ, सबसे पहले है कि नहीं जाए पढ़ने के लिए। तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कैसे जाएंगे, हमारी शिकायत हो जाएगी, जो बहू जो है घर के बाहर जा रही है, जबकि हमारे यहाँ बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। अच्छा। वो पूरे घूंघट में रहती थी। उस माहौल में आपने आंटी को मतलब बाहर भेजा पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए हमने भेजा है। आपका कहने का मतलब अंकल कि जॉइंट फैमिली के फायदे भी हैं, हाँ, और थोड़े से नुकसान भी है। ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली में रह के कई बार आपको अपने जो आपके जो पर्सनल सपने होते हैं उनको थोड़ा पीछे रखना पड़ता है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहती हूँ अंकल, हमारी जनरेशन के लिए और आपकी जनरेशन के लिए भी, आपके एक्सपीरियंसेस के द्वारा आपको क्या लगता है कि एक चीज़ जो आपकी लाइफ का एक धारा है, जो आपकी लाइफ की एक फाउंडेशन है, जिसके साथ आप चलते हैं, वो क्या थिंकिंग है, क्या थॉट प्रोसेस है वो आपका? लाइफ तो आदमी अपने से सेट करता है। हाँ, अब और वो आदमी अपना हर कमजोरी को अंदर से जानता है, क्या कि हम में क्या कमी है। उस कमी को दूर करते हुए जो है सो आगे को बढ़ना पड़ेगा। अपनी कमियों को जानना जरूरी है। हाँ, जानना जरूरी है। उसके बाद में आगे को अपने को बढ़ाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अंकल ने बोला, क्योंकि कई बार हम जो हमारी वीकनेसेस होती हैं हम किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहते, हम डरे रहते हैं कि किसी को हमारी कमजोरियां ना पता चल जाए। तो अंकल ने बहुत अच्छा पॉइंट करा है कि अगर आपकी कोई कमजोरी है पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में, तो शेयर करें, क्योंकि कोई ना कोई मिलेगा जो आपकी मदद करे। राइट। तो अंकल मुझे थोड़ा सा आपके बारे में और जानना है, तो मैं थोड़े फन क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करती हूँ। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन थी आपके ज़माने में? अंकल ने कोई तो हंसी आ गई, अंकल को यादें आ गई हैं ताज़ा। मधुबाला। ओ अंकल, वो तो मेरे को लगता है कि हमारी जनरेशन के भी। कौन सी उनकी मूवी आपको सबसे ज्यादा याद है? वो जो प्यार किया तो डरना क्या ना? हाँ, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया तो कोई चोरी नहीं की, घुट घुट के थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू सो मच हमारे प्रिय दर्शकों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर गिविंग अस योर टाइम। बहुत अच्छा लगा हमें बात करके। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। बिना लाइक करे, बिना शेयर करे, कमेंट करे मत जाइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिए द सीनियर सागा। और अगर आप जानते हैं आपके पेरेंट्स, आपके पड़ोसी, जो भी बड़े हैं लोग, अगर आप चाहते हैं कि वो भी इस शो में आए, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं और हम उनको रीच आउट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड यू ऑल हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, नमस्ते।